Okay, let's start with the lesson. Good morning to all again. So today we'll continue with the Java statements, NetBeans statement that we were doing. Um, See, we were talking about different controls that uh, that we can add up in NetBeans software. So let me show you the files before we start. Okay, so the controls we have done that. We have talked about radio button checkboxes and their controls and methods, and I've told you that some methods are very important when we talk about creating some GUI forms, right? So moving further, we'll also talk about some more controls, and then we'll finally do some more GUI form practices, right? मैं अभी आपको controls share करता हूँ. I'll move on to the file. So this was we discussing about containers, buttons, labels, we have done text field, we have done checkboxes. ये हमने last किए थे checkboxes or radio buttons, and then we have also talked about these methods. I told you this is selected and set selected are the most commonly used and asked in exams. Right, now moving on to the next control, we have list control. Now list is a boxed shape container which contains a list of different objects and from which a single or multiple selections can be made. So list एक वो control है जिसमें if you see it, it's kind of box in which different items are listed, and out of these items you people can either select single value or you can select multiple values also, right? So we can make our choices, right? It is always equipped with built-in scroll bar to be a larger list. If number of items that you add up there, number of the values that you add up there, the objects that you add up there, they are larger than the size of the list. So automatically one scroll bar is added on the right side of it so that you can scroll the list up and down. Who is this? चलो ऑप्शन ही बंद कर दिया. Working with list controls, let's move on. We'll talk about different properties it has and what all the methods we can change. These are the properties: background, foreground. These are the properties which are common for all controls. So to set the colors of the color of the background as well as the color of the text or anything written on that control. ये जो अदर प्रॉपर्टी है मॉडल प्रॉपर्टी ये नहीं है और ये सिर्फ लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में मिलेगी. In this property we can type the names of different items that you want to show in the list. Fine, so whatever you want to show in the list, these the items that you want to show can be added up in the model property. Model property के आगे आप वो सारे लिस्ट के आइटम्स के नाम लिखोगे जो आपको लिस्ट के अंदर चाहिए, right? And then we have another property called as selection mode. Now selection mode is used to select any value within the list. We have three values which we can set. एक है सिंगल सिलेक्शन मोड. सिंगल मोड में क्या है कि आप सिर्फ एक आइटम को एक टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हो. एक है सिंगल इंटरवल. सिंगल इंटरवल मतलब आप एक साथ. Now if you want to select let's say 2 3 4, so we can select
the items, second, third and fourth item by holding the shift key from the keyboard, right? बट सिंगल इंटरवल का मतलब है एक साथ की। अगर आपको रैंडम चाहिए, जैसे आपको पहला आइटम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद फिफ्थ करना है, फिर नाइन्थ करना है, for that we will go with this multiple interval control. If you select this multiple interval mode, then you can select multiple range of items. तो ये होता है कंट्रोल की के साथ। कंट्रोल की दबा के रखो और जिस जिस आइटम को आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। बट दिस इज ओनली वर्क्स इफ यू सेलेक्ट मल्टीपल इंटरवल। अगर आप सिंगल इंटरवल करोगे तो आप रैंडम नहीं कर सकते हो, एक साथ वाली दो तीन आइटम्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हो और वो शिफ्ट से होती है, ठीक है। शिफ्ट दबाया और क्लिक करते गए और एक साथ वाली लाइक 1 2 3 3 4 5 5 6 7 ऐसे कंटिन्यूस वाली दो तीन आइटम्स को आप 2 और मोर आइटम्स यू कैन सेलेक्ट, राइट। एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है सेलेक्टेड इंडेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्टेड इंडेक्स का मतलब है it will try to show you the it will simply select the value जिसका इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे शो करोगे। ये पहले पता होना चाहिए इंडेक्स नंबर क्या होता है। जितने भी कंट्रोल्स हम लिस्ट में लगाते हैं, see this is one list, right? जितने भी कंट्रोल, जैसे ये हमने नाम दिया एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया, no, all these values, the items that we add here, they are given a unique number called as index number. The first value apple, इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, नेक्स्ट का 1, मैंगो का 1, बनाना का 2, ऑरेंज का 3, पपाया का 4, likewise. So it always starts from 0 and it continues in the sequence, right? So अगर आप चाहते हो कि बनाना वाला जो वैल्यू है, जो नाम है, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो, जब आप प्रोग्राम रन करो तो प्रोग्राम में जो बनाना वाली लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, राइट। डिफॉल्ट सिलेक्शन बनाना को, तो फॉर दैट बनाना का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये 0 1 2, इंडेक्स नंबर विल बी 2। व्हाट वी नीड टू डू इज ये सेलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में जाके आपको 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे 2 सेलेक्ट किया तो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो ये जो बनाना वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा पहले से डिफॉल्ट, ठीक है। आप बाद में चेंज कर सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। बट इफ यू वांट टू सेट अ डिफॉल्ट सिलेक्शन, दैट वी कैन डू विद दिस सेलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट सेलेक्ट एनी वैल्यू हियर, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। -1 का मतलब नो आइटम इज सिलेक्टेड, ठीक है, उसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी, राइट। देन वी हैव फॉन्ट प्रॉपर्टी, चेंज द फॉन्ट। एनेबल प्रॉपर्टी वही है ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है तो आपका कंट्रोल एक्टिव है, नहीं तो वो इनएक्टिव होगा। मेथड्स एसोसिएटेड विद लिस्ट, फर्स्ट इज क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन क्या करता है, whenever we use this statement, this method, so this how do we write, we'll simply write the name of the list dot clear selection। तो जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो जो कुछ भी आपने पहले सेलेक्ट किया होगा उस लिस्ट के अंदर, वो सिलेक्शन उससे हट जाएगी। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो बनाना हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसका कलर और वो सब चेंज है ना, तो दिस विल बी रिमूव्ड, इट विल बी ऑफ डिफॉल्ट कलर इन टेक्स्ट, right? Selection will not be there. So this method clears the selection, right? Get selected index, get selected value, ये दो methods जो हैं, these are the most important methods which are used in programming concepts. अब ये क्या है, get selected index method क्या करता है, it will try to read the index number of the value which is selected। मतलब अगर आपने
बनाना वाले वैल्यू को सेलेक्ट किया है, तो आप लिख रहे हो int x इज इक्वल टू j लिस्ट वन, लिस्ट j लिस्ट वन इसका नाम है, डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। तो गेट सेलेक्टेड इंडेक्स मेथड क्या करेगा, इसका जो भी इंडेक्स नंबर है, जो भी वैल्यू सेलेक्टेड है, बनाना is selected in this case, let's say, so the index number will be 0 1 2, value of x will be 2 now. So get selected index method reads the index number of the value which is selected in the list. लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू सेलेक्ट की गई है यूजर के द्वारा, उस लिस्ट उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर जो भी होगा, that will be taken out and that will be given or assigned to some variable, right? और अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यू ही चाहिए, आई वांट दिस बनाना वैल्यू टू बी यूज्ड, तो उसके लिए मेथड है गेट सेलेक्टेड वैल्यू, राइट? So for that we need a variable of string type, because वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, इंडेक्स होता है इंटीजर में, तो उसके लिए इंडेक्स चाहिए, इसमें स्ट्रिंग st चाहिए, st या कोई भी वेरिएबल नेम ले लो, और ब्रैकेट में यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि वही रीजन है, गेट सेलेक्टेड वैल्यू यहाँ से वैल्यू उठाएगा, वो वैल्यू कुछ भी है, वो that value has to be converted into string form, only then it can be utilized and used. So ये स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है, ब्रैकेट में स्ट्रिंग डाल दो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही है जैसे ऊपर लिखी है, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, गेट सेलेक्टेड वैल्यू, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, st को असाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उनमें ये दोनों चीजें प्रिंट कर दी, x की वैल्यू प्रिंट की, तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, और टेक्स्ट फील्ड 2 में हमने st की वैल्यू प्रिंट की है, st में क्या है, जो भी हमने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो जहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो सेम वैल्यू विल बी शोन हियर, राइट? तो ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड इज सेलेक्टेड इंडेक्स, इज सेलेक्टेड वैल्यू, राइट? ये भी वर्क, इज सेलेक्टेड का मतलब टू चेक, इट विल चेक वेदर द वैल्यू सेलेक्टेड, उसका इंडेक्स नंबर गिवन इंडेक्स नंबर से मैच करता है कि नहीं। लिखेंगे कैसे, ये हमेशा इफ कंडीशन में आएगा, इफ लिस्ट वन डॉट इज सेलेक्टेड इंडेक्स 2, तो क्या इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू सेलेक्टेड है, अगर है यस तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। दिस वी हैव टू कंपेयर इन इफ कंडीशन, विल राइट, इन केस ट्रू हुआ तो वी हैव टू write some statements based on our programming here in within the curly bracket within the block, or if it is false then we have to write in that way, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम में आपको मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई अगर बनाना वाली वैल्यू सेलेक्ट की गई है, तो या हम वही बात करें, यहाँ पे दो ही वैल्यूज हैं, एक AC एक नॉन AC, ठीक है? अगर यूजर AC वाला सेलेक्ट करता है तो 1000 चार्जेस लगने हैं, और अगर वो नॉन AC वाला सेलेक्ट करता है तो आप 500 चार्जेस लोगे। उसके लिए वी नीड टू चेक वेदर AC वाला लिस्ट वैल्यू जो सेलेक्ट की है या नॉन AC वाली वैल्यू सेलेक्ट की है। तो हाउ डू वी चेक? विल चेक विद दिस मेथड इज सेलेक्टेड इंडेक्स, विल राइट इफ लिस्ट नेम इज सेलेक्टेड इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स है, मान लो AC वाला ऊपर है, AC का इंडेक्स नंबर, AC वाला यहाँ पे है, AC वी हैव रिटन AC इन प्लेस ऑफ एप्पल है, तो इंडेक्स नंबर विल बी 0, ये पहली वैल्यू 0 होती है, तो here विल राइट 0। अगर 0 इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू सेलेक्टेड है तो यहाँ पे हम 1000 के हिसाब से विल मल्टीप्लाई दैट 1000 बाय नंबर ऑफ डेज एंड देन विल कैलकुलेट एंड प्रिंट, और एल्स लिख के अगर वो फॉल्स है तो आप 500 की कोडिंग लिखो वहाँ पे, जैसे हमने प्रोग्राम किया था लास्ट, ठीक है? वैसे ही वी कैन डू इट।
राइट. सो हमने वो रेडियो बटन से किया था, तो वी कैन डू इट विद द कॉम्बो बॉक्स एंड चेक बॉक्स आल्सो, दिस लिस्ट बॉक्स आल्सो. जो बाकी मेथड्स हैं, इज एनेबल्ड, सेट विजिबल, सेट एनेबल्ड, इज और सेट वाले सारे तीनों, all these three are also used here in the list control, that they are common for every control. ठीक है. तो ये जो तीन है, तीन नहीं छह है बेसिकली, इज एनेबल, सेट एनेबल, इज विजिबल, सेट विजिबल, इज अच्छा यहाँ सेट एनेबल दो बार लिख दिया, राइट. एक इज एडिटेबल और सेट एडिटेबल. इनमें से ये जो दो हैं, एनेबल्ड और विजिबल, ये सारे कंट्रोल्स के साथ लगते हैं. और जो एडिटेबल वाला है वो टेक्स्ट फील्ड्स या टेक्स्ट एरिया में लगता है और कहीं नहीं लगता. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे एक और चेंज है. द चेंज इज दैट कि भाई लिस्ट में हम बटन के अंदर कोडिंग नहीं करते. हमने शुरू में किया था. कोडिंग कहाँ करेंगे? कोडिंग प्रोग्राम, वेयर डू वी टाइप द प्रोग्राम वी टाइप्ड इन द control. First of all, we'll check what is the event source. Event source मतलब वो event कहाँ से start होगा. जैसे मान लो हमने बटन पे क्लिक किया, तब हम चेक करेंगे हमारा आंसर ये आना चाहिए. इसका मतलब हमारा event source बटन है. Then what we do is we write all the program instructions into that button. आप बटन पे डबल क्लिक करते हो, कोडिंग विंडो ओपन होती है, आप वहाँ पे सारे कोड्स को लिखते हो, right? But that is only for the button case. In case of list, I don't want, like this example, if you see here, यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम में क्या किया है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ एक एग्जिट बटन है बंद करने के लिए. यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रही है कि जैसे मान लो बनाना पे क्लिक किया, तो यहाँ बनाना आ जाए और यहाँ बनाना का इंडेक्स नंबर आ जाए. अगर मैं पपाया पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पपाया प्रिंट हो और पपाया का इंडेक्स नंबर यहाँ प्रिंट हो. So we are not using any button. So how the coding is working? It is working on this list only. तो वो लिस्ट में हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे? लिस्ट के अंदर डबल क्लिक करके तो होगा नहीं. इसमें एक ऑप्शन होता है, आप इस पर राइट क्लिक करो, इवेंट्स नाम का एक ऑप्शन आएगा. उसमें बहुत सारे इवेंट्स, वहाँ पे बटन के इवेंट्स भी होंगे. वहाँ पे लिस्ट सिलेक्शन करके एक इवेंट है, उसके अंदर वैल्यू चेंज मेथड है. इस पे क्लिक करो तो ये जो लिस्टनर है, वैल्यू चेंज वाला लिस्टनर, इस फिर आपको कोडिंग सेक्शन खुल जाएगा जिसके अंदर आपको कोड लिखना है. जस्ट क्लिक ऑन इवेंट्स, लिस्ट सिलेक्शन, वैल्यू चेंज, विल गेट दिस थिंग एंड देन यू कैन टाइप ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस देयर. इस इंस्ट्रक्शंस में क्या कर रहे हैं हम, वी गो थ्रू अगेन. गेट सिलेक्टेड इंडेक्स से वी रीड अ वैल्यू, we read the index number of the selected item, store it in a variable, and then get selected value से उस value को read किया, string में convert किया, variable में डाला, and then we are printing both the things in two different text fields, right? So this is the thing. So यहाँ पे event जो है वो button नहीं है, event यहाँ पे list selection है. list के selection के ऊपर हम हमारी coding work करेगी. Fine. Okay. Combo box, list and combo box, they are almost similar. कॉम्बो बॉक्स को हम बोलते हैं लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन, राइट. सो इट हैज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट. जैसे ये कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है. यू क्लिक ऑन द एरो, यू गेट द लिस्ट. अदरवाइज लिस्ट नहीं शो होती है, आपको सिर्फ एक वैल्यू शो होती है जो सिलेक्टेड है, जो डिफॉल्ट सिलेक्ट की गई, राइट. कॉम्बो बॉक्स इज अनएडिटेबल एट रन टाइम. मतलब जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू है वो आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो, right? But we can make it editable by going into the editable property. editable property में जाके true कर दोगे तो वो editable हो जाएगा. रन टाइम पे आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे you can change it here,
राइट। आप यहाँ क्लिक करके चेंज कर रहे हो ना, तो यू कैन चेंज इट देयर इन द रन टाइम ऑल्सो। Another important question, what is the difference between list and combo box? जैसे हमारे लिए रेडियो बटन, चेक बॉक्स दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट था। रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन है, चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन है। And similarly, in case of list and combo box, we have the same difference. In combo box, we can select one value because box में लिस्ट नहीं शो होती है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू शो होती है कॉम्बो बॉक्स में, राइट। whereas in list control we can select multiple options also। वो भी हमने पीछे भी देखा था, ये लिस्ट सिलेक्शन प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तीन तरह के वैल्यूज आप सेट करते हो, एक सिंगल है, एक सिंगल इंटरवल है, एक मल्टीपल इंटरवल है। सिंगल किया तो सिंगल सिलेक्शन होगी, मल्टीपल इंटरवल किया, सिंगल इंटरवल किया तो आप एक साथ की 3, 4, 5 जितने भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, और मल्टीपल इंटरवल पे आप कोई भी रैंडम वैल्यूज वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो लिस्ट में वी हैव एन ऑप्शन फॉर मल्टीपल कंट्रोल्स, बट इन कॉम्बो बॉक्स वी कैन सेलेक्ट ओनली वन। Moreover, in combo box, user can select and edit an item, मतलब आप उनको चेंज कर सकते हो, जबकि लिस्ट में items can be selected but cannot be edited। ये डिफरेंस वही है टेक्स्ट फील्ड और लेबल का डिफरेंस। टेक्स्ट फील्ड रन टाइम पे एडिटेबल होती है, मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फील्ड। सिमिलरली यू कैन चेंज द वैल्यूज इन ए कॉम्बो बॉक्स, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स भी टेक्स्ट फील्ड का कॉम्बिनेशन ही है। तो बट इन केस ऑफ लिस्ट वी कैन एडजस्ट, ये पीछे लिस्ट है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो रन टाइम पे, राइट। Then is combo box has a drop down list, it takes less space। लिस्ट में सारा कुछ विजिबल होता है, स्पेस ज्यादा लगती है, राइट। combo box we can select only one item। all the properties are same as we have in the list box, only difference is that यहाँ पे एडिटेबल प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वहाँ पे एडिटेबल नहीं, क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकती, रन टाइम पे ही एडिट होती है। तो एक एडिटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एडिशनल है, बाकी रेस्ट ऑल इज सेम, राइट। वन मोर डिफरेंस इज दैट यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी है, वहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी है, नाम का फर्क है, सिर्फ काम सेम है। तो here method is also same, that get selected item in combo box, and in checkbox it was get selected value, right। The name of the method is slightly changed, list में it is value and in combo box it is item, right। working same है, get selected index, index read करेगी, get selected item उस item को read करेगी, right। and then is वाले method भी है, is selected index and is selected item, is editable क्योंकि editable property इसमें होती है, तो is editable method भी है which can check whether the combo box editable property is true or false। एक ये add item method है नया। add item का मतलब है कि लास्ट में एक नई वैल्यू ऐड कर दो, जैसे आपने लिखा जे कॉम्बो बॉक्स 1 जो कि कॉम्बो बॉक्स का नाम है, डॉट ऐड आइटम ब्रैकेट में बनाना, जो भी आपकी कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट बनी होगी उसके लास्ट में बनाना ऐड हो जाएगा, राइट। गेट आइटम काउंट विल शो यू हाउ मेनी आइटम्स वी हैव, नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी आइटम्स हैं। आइटम्स का मतलब ये, जैसे हम ये ऊपर कॉम्बो बॉक्स है, काउंट हाउ मेनी आर दीस, कितनी है टोटल, इनकी काउंट जो है वो ये मेथड बता सकता है, राइट। Then if you want some particular value, you want to take out some value, मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 5 पे जो वैल्यू है मुझे वो वैल्यू उठानी है, उसके लिए I'll type कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट गेट आइटम ऐड,
और यहाँ ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर को लिख दो, 5 लिख दो। 5 इंडेक्स नंबर की जो भी वैल्यू है that will be picked up, and we need to store it into a variable of string type. Why? Because वैल्यू जो आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में काउंट होगी। देन इसमें एक रिमूव ऑल आइटम्स, पूरी लिस्ट को खाली करने के लिए। रिमूव आइटम एट, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ऐड आइटम ऐड करने के लिए, और रिमूव आइटम एट रिमूव करने के लिए। ठीक है, ऐड आइटम हमेशा लास्ट में ऐड करता है, और रिमूव आइटम एट आप इंडेक्स नंबर बताओ जो डिलीट करना है, डिलीट दैट, राइट। So mainly this both are almost same, list और combo boxes, बस थोड़ा सा ही फर्क है, सिलेक्शन का फर्क और डिस्प्ले का फर्क है। So before going further, let's practice this list control once. Let me open NetBeans. It's taking time to open. So likewise, we have a few more controls. By the time that software opens, I'll do the next one. Next one is just text area. Now text area और text field जो है, इनमें multiple फर्क ये है कि text area में we can add multi-line text, means text can be written in more than one lines, and in text field we can write it in only one line, right? By default, it does not wrap the lines of text like word processor. अब wrapping क्या होता है? In case first line में text नहीं आया, तो हम next line में text चला जाता है, वो wrapping जो है इसमें नहीं होती। So that means if the text goes beyond the boundary, keeps on writing in the same line. अगर आपका टेक्स्ट जो है वो बाउंड्री से ज़्यादा हो रहा है, तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली जंप नहीं करेगा, एक ही लाइन में लिखता जाएगा और नीचे स्क्रॉल बार ऐड कर देगा, राइट। और अगर आपको ऐसा करना है, रैपिंग करनी है, तो रैपिंग के लिए भी है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स that can be used to wrap the text. Now you can wrap the text if not fit in the visible area. उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज में इसके बैकग्राउंड फोरग्राउंड प्रॉपर्टी कॉमन है, सेम जो पहले की थी। और ये जो मैं बात कर रहा था लाइन रैप प्रॉपर्टी, लाइन रैप प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इफ इट इज ट्रू, अगर वो हमने ट्रू कर दी है तो रैपिंग हो जाएगी। रैपिंग होने का मतलब है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो बाउंड्री लाइन से बड़ा हो रहा है, जितना भी आपने टेक्स्ट एरिया डाला है उससे बड़ा साइज का टेक्स्ट है, तो ऑटोमेटिकली द टेक्स्ट व्हिच एंड्स देयर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, राइट। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है और आपको ट्रू करनी पड़ेगी लाइन रैप, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लाइन रैप प्रॉपर्टी में एक चीज और होती है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है, मान लो लास्ट वर्ड उसमें आता है कंट्री, मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया, कंट्री उसमें नहीं आ रहा, उसके लिए स्पेस खत्म हो गई, तो आपके पास मान लो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की स्पेस रह गई। नाउ व्हेन यू टाइप कंट्री,
और आपने लाइन रैप प्रॉपर्टी को यहाँ ट्रू कर दिया, तो क्या होगा, कंट्री का सी ओ ऊपर आ जाएगा, यू एन टी आर वाई नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, मतलब वो वर्ड को भी स्प्लिट कर देता है, वर्ड को तोड़ देता है। ठीक है, तो लाइन रैप प्रॉपर्टी में ये एक डिसएडवांटेज है that when you set line wrap property true, so whenever text comes, it happens that the text that we are entering is larger than the size of the text field, the text area. तो जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में तो मूव कर ही जाएगा, बट वो टेक्स्ट का अगर वो आधा पार्ट ऊपर आ रहा है तो आधा पार्ट ऊपर रह जाएगा, आधा पार्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। इसको ओवरकम करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट रिटन हेयर, इट इज कॉल्ड एज रैप स्टाइल वर्ड, राइट, WRAPSTYLE तो रैप स्टाइल वर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू अगर आप उसको थ्रू करते हो तो फिर वो वर्ड वाइज अगर आपको लास्ट वर्ड, जैसे कंट्री मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने पूरा सेंटेंस लिखा, लास्ट में कंट्री वर्ड आने के लिए जगह नहीं बची, मान लो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की स्पेस बची है, बट हमारे पास कंट्री वर्ड है, कंट्री में कैरेक्टर्स 2 से ज़्यादा है, तो डिफ़ॉल्ट में तो कंट्री का सीईओ ऊपर आ गया, बट अगर आपने रैप स्टाइल वर्ड ट्रू किया है तो फिर वो पूरा का पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, वर्ड की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी ओवर है। देन एक रोज प्रॉपर्टी है, उसमें हम सेट करते हैं कितनी रोज आ सकती हैं एक टेक्स्ट एरिया के अंदर, कॉलम्स में मतलब एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो टेक्स्ट एरिया में शो करना है। फॉन्ट प्रॉपर्टी इज सेम, एडिटेबल एंड अनेबल प्रॉपर्टी इज सेम, राइट। अब इसके मेथड्स हम बाद में करते हैं, पहले हम लिस्ट कंट्रोल्स के मेथड्स देख लेते हैं। लेट्स जंप ओवर टू नेट बीन्स। ये हमने रेडियो बटन्स वाला प्रोग्राम किया था कि रेडियो बटन्स को आपने ऐसे सेट कर लिया। हम यहाँ पे अगर कोई लिस्ट लगाना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो पुट अ लिस्ट, वेयर इज दैट लिस्ट कंट्रोल, ये रहा, ये हमने लिस्ट लगाई। पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपको, अच्छा प्रॉपर्टीज यू कैन सी हियर, अनदर वे टू सी द प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक, लास्ट में प्रॉपर्टीज है, यहाँ से भी आपको दिख जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज। ये है मॉडल प्रॉपर्टी, मॉडल प्रॉपर्टी में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, वो ये जो यहाँ डिस्प्ले करना है हमने, तो आप इनको चेंज कर लो, यहीं पे कर लो, यहाँ ये एक बटन है, इस पर क्लिक करो तो ये ऑर्डर में आ जाती हैं। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, लाइक वाइज, जैसे हमने 3 ही डाली तो वो 3 वैल्यूज यहाँ आ गई। ये वो मल्टीपल सिलेक्शन मोड है, मल्टीपल इंटरवल बाय डिफॉल्ट है, आप सिंगल या सिंगल इंटरवल भी कर सकते हो, राइट। बाकी की प्रॉपर्टीज तो वही हैं कॉमन। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे तो हम कोडिंग करते हैं बटन के अंदर, बिकॉज हमें आंसर चाहिए बटन पे क्लिक करने के बाद, बट इन दिस केस द आंसर, फॉर दैट वी हैव टू गो टू इवेंट, इवेंट में लिस्ट सिलेक्शन, वैल्यू चेंज, right, so automatically will lead to the new event generator, event listener, there we have to type, right, टाइप क्या करना है, मान लो for this we need to change the variable name of this, j list1 है, मैं इसको li कर देता हूँ, so that I could change
So we'll see int x is equal to li dot get selected index. Fine. So that x we can print in the label as x dot set text inverted comma x and semicolon. Right. So let's see हमने क्या किया, get selected index लिया और उसको हम उसी लेबल में प्रिंट करते हैं. कंपाइलेशन हो रही है. जैसे देखो मैंने मैंगो सेलेक्ट किया तो यहाँ 1 आ गया, बनाना सेलेक्ट किया 2 आ रहा है, एप्पल किया तो 0 आ रहा है. तो यहाँ पे बिना बटन के हम लोग वर्क कर रहे हैं. ये सिलेक्शन मेथड की वजह से है. राइट. ऐसे ही गेट सेलेक्टेड वैल्यू कर देंगे तो यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. राइट. अगर हम यहाँ गेट सेलेक्टेड वैल्यू करके यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रिंग करते हैं तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. राइट. So that's all from my side today. I'll end up. The class is about to end. So practice this and we'll talk about next time.